राधे राधे आप सभी को। अब हम देखेंगे सेक्शन 57 क्या कहता है। सेक्शन 57 स्टेट्स फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, यानी किन फैक्ट्स का कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो सेक्शन ने क्या स्टेट किया, कोर्ट फॉलोइंग फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लेगी। द कोर्ट shall take means it is mandatory upon court to take judicial notice of following facts. That means following facts को लेकर जो आगे अभी हम देखेंगे, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। एज वर्ड shall is used and not may. Okay. द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, ये जो शैल वर्ड है ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस एक बार इनकी इंग्लिश में रीडिंग दे लेते हैं। एज सच ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम हम इस पर डिवोट नहीं करेंगे, बस एक बार इंग्लिश में रीडिंग दे लेते हैं। और बाकी ये पूरा का पूरा सेक्शन केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये जो फैक्ट्स हैं 8-9 फैक्ट्स इसमें दे रखे हैं, इनको एक बार अच्छे से रीड करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नंबर 2, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हेयर आफ्टर टू बी पास बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट्स डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूके टू बी जुडिशियली नोटिस्ड। थर्ड, आर्टिकल्स ऑफ वार फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फोर्थ, the course of proceeding of Parliament of the United Kingdom, of the Constituent Assembly of India, of Parliament and of the legislatures established under any laws for the time being in force in a province or in the states. Fifth, the accession and the sign manual of the sovereign for the time being of the UK, of Great Britain and Ireland. Sixth, all seals of which English courts take judicial notice. The seals of all the courts in India and of all courts out of India established by the authority of the central government or the crown representative. Seventh, the accession to the office, names, title, function and signatures of the persons filling for the time being any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette. Eighth, the existence, title and national flag of every state or sovereign recognized by the government of India. 9. The division of time, the geographical division of the world and the public festival, fast and holiday notified in the official gazette. Public festival जैसे कि होली, दिवाली। फास्ट जैसे कि करवा चौथ का व्रत। एंड पब्लिक हॉलीडे जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 25 दिसंबर क्रिसमस एक्सेट्रा। 10th, the territories under the domain of Government of India. 11th, the commencement, continuance and termination of hostilities between the Government of India and any other state or body of person. 12th, the names of the members and officers of the court and of their deputies and subordinate officers and assistants and also of the officers acting in the execution of its process and of all advocates, attorneys, proctors, vakils, pleaders and other persons authorized by law to appear or act before it. 13th, the rule of the road on land or at sea. Rule of road on land or at sea. In all these cases and also on all matters of public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference. If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. तो टोटल इसमें 13 फैक्ट्स गिवन है, जिसको आप एक बार पीटी के लिए देख लेना। अब लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने क्या बताया, इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि इन सभी केसेस में प्लस पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, इन मैटर्स में भी कोर्ट
एप्रोप्रिएट बुक्स की, डॉक्यूमेंट्स की हेल्प ले सकती है. ओके, इन ऑल दीज केसेस एंड ऑल्सो प्लस ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, कोर्ट may take help to appropriate books or documents of reference. फिर आगे इन्होंने बताया, if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so. It यानी कि court, unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. It यानी कि court. तो क्या बताया लास्ट पैराग्राफ में, अगर किसी पर्सन ने कोर्ट को किसी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बोला है तो कोर्ट उस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने से मना कर सकती है जब तक वो पर्सन कोई बुक या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर देता जो कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेने के लिए इनेबल करे. ओके, इस पैराग्राफ में बात किसी और फैक्ट की हो रही है. जो सेक्शन में फैक्ट्स बताए गए हैं उनकी नहीं, बिकॉज उन पर तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बाउंड है, क्योंकि वर्ड शैल यूज कर रखा है. जबकि यहां से लेकर इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पार्टी से लेकर टू डू सो तक इस पैराग्राफ में किसी और फैक्ट की बात हो रही है जो इस सेक्शन में गिवन नहीं है. क्यों? क्योंकि जो सेक्शन है ये केवल इलस्ट्रेटिव लिस्ट प्रोवाइड करता है. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी. सेक्शन 57 provides illustrative list only and not exhaustive. That means कोर्ट इन फैक्ट्स के अलावा भी किसी और फैक्ट्स पर जुडिशियल नोटिस ले सकती है. ठीक है, समझ में आया? प्लीज इस पॉइंट को पीटी के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जो सेक्शन 57 है वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये केवल एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट प्रोवाइड करता है और इसलिए कोर्ट इन फैक्ट्स के अलावा भी किसी और मैटर पर जुडिशियल नोटिस ले सकती है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है. प्रिंसिपल, द कोर्ट इज बाउंड टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट्स इनमरेटेड इन द सेक्शन. दिस इज क्लियर फ्रॉम द यूज ऑफ द वर्ड द कोर्ट शैल. That is to say, the court cannot refuse to take judicial notice of the facts covered by section 57. Okay? वही बात है, जो कोर्ट है बाउंड है इन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए. क्यों? क्योंकि सेक्शन का वर्ड यूज करता है शैल. दैट इज सेक्शन कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन पुट करता है कि कोर्ट को इन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा. It is obligatory on the court to take judicial notice of all laws or rules having the force of law in the past, present or future in any part of India, that is of all Indian laws. आगे इन्होंने बताया कि it is obligatory on the court कि जो कोर्ट है वो सभी लॉज का जुडिशियल नोटिस लेगी जो कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भारत के किसी भी पार्ट में एनफोर्स में थे. ओके, तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं ऑल इंडियन लॉज. और वैसे ये जो चीज है ऑलरेडी सेक्शन के अंदर कवर की हुई है. देखो ये रहा नंबर 1, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब ये जो लॉज है कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तीनों तरह के लॉ यहां पर इंक्लूड कर लिए गए. ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया कोर्ट कैन नॉट टेक नोटिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन एन इनेक्टिंग स्टैट्यूट. Indian law includes any law, ordinance, order, bylaw or regulation passed or made at any time by any competent legislature, authority or person in India. Section 3, Clause 29, General Clause Act. ठीक है, यहाँ पर बस इन्होंने ये बता दिया जो इंडियन लॉ है उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे. इंडियन लॉ इंक्लूड्स एनी लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ और रेगुलेशन पास और मेड एट एनी टाइम बाय एनी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर और अथॉरिटी और पर्सन इन इंडिया. ओके, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात एक केस में हेल्ड करी थी. कौन सी? कि जो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है सेक्शन 57 में ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बल्कि कोर्ट जो है पूरी तरीके से फ्री है कि वो अदर मैटर्स पर भी जुडिशियल नोटिस ले सकती है जिनको सेक्शन 57 में मेंशन नहीं किया गया है. ओके, आगे चलते हैं.
अब देख लेते हैं अदर मैटर्स को भी जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है और जिनको सेक्शन 57 की लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया। चलिए देखते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन रेंट्स। कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ रेंट्स पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। The Supreme Court has observed that the accommodation which one could get easily in 1973 for rupees 400 per month cost in 1986 at least 5 times more. ठीक है, तो कोर्ट किस चीज का जुडिशियल नोटिस ले सकती है कि जो रेंट है उनमें इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे जो अकोमोडेशन 1973 में 400 रुपए में मिलता था वो 1986 में 2000 का मिलने लगा, और 2020 में तो आपको पता ही है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर आप दिल्ली में या किसी भी अदर स्टेट में पढ़ाई करने के लिए आगे जाते हैं तो केवल सिंगल बेड ही आपको 8000 रुपये का प्रोवाइड किया जाता है। रूम की तो खैर आप बात ही छोड़ दो, मैं केवल एक सिंगल बेड की बात कर रहा हूँ। ये जैसे रूम है और यहाँ पे सपोज करो 3 बेड है, 4 बेड है, तो सिंगल बेड की ही कीमत 8000 रुपये है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो इस बात का। इसी तरह यूज ऑफ लिकर बाय यंगर जनरेशन। इट इज नोटोरियस फैक्ट ऑफ विच कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस दैट मोर एंड मोर ऑफ द यंगर जनरेशन इन दिस कंट्री इज गेटिंग एडिक्टेड टू लिकर। इसी तरह यंगर जनरेशन में लिकर को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला है, एंड स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और अगर हम बात करें पंजाब जैसे स्टेट की, पीपल आर यूजुअली एक्टिव इन ड्रग्स ऑल्सो। वहां की हालत तो बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुके हैं इस समय। और देखते हैं, मैक्सिमम क्राइम्स आर कमिटेड इन 4 व्हीलर्स विद ब्लैक फिल्म्स ऑन विंडोज और विंडशील्ड्स। द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट मैक्सिमम क्राइम्स आर कमिटेड इन द 4 व्हील्ड व्हीकल्स यूजिंग ब्लैक फिल्म्स ऑन विंडोज और विंडशील्ड्स। जैसे कि कौन सी गाड़ी की बात हो रही है यहां पर? ओमनी वैन। आपको याद हो तो पहले एक वैन गाड़ी चलती थी जिसमें आगे की सीट के अलावा पीछे भी 2 सीट होती थी, फ्रंट फेसिंग सीट होती थी उसमें, इस तरीके से आमने सामने फेस करते हुए। आपने 90s की मूवीज में अक्सर देखा होगा, जनरली ब्लैक फिल्म्स वैन में ही क्राइम कमिट होते थे, चाहे वो किडनैपिंग हो चाहे वो रेप हो। अक्सर किडनैपिंग के लिए तो ये कार बहुत यूज की गई थी, सीरियसली, इसमें कोई जोक नहीं है। और मैं इस कार की कंपनी को या इस कार को यहाँ डिफेम नहीं करना चाह रहा, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि 90s के टाइम में ओमनी वैन के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम कमिट किए गए थे। इसी तरह अगला पॉइंट इन्होंने बताया, रिलेक्टेंस ऑफ पब्लिक टू अपीयर एंड डिपोज बिफोर कोर्ट। जुडिशियल नोटिस वॉज टेकन ऑफ द फैक्ट दैट द पब्लिक आर रिलेक्टेंस टू अपीयर एंड डिपोज बिफोर द कोर्ट, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस बिकॉज ऑफ मैनी ऑब्वियस रीजंस। जो पब्लिक होती है यानी जनरली जो आई विटनेसेस होते हैं स्पेशली क्रिमिनल केसेस के, वो जनरली कोर्ट में आने से परहेज करते हैं बिकॉज ऑफ मैनी ऑब्वियस रीजंस। और ये जो ऑब्वियस रीजन है ये हम जब हॉस्टाइल विटनेस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ। आपने ये भी देखा कि सेक्शन 57 के अंदर जो लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है जिसमें 13 फैक्ट्स मेंशन्ड है, इनके अलावा भी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। तो इसका मतलब ये जो लिस्ट है एग्जॉस्टिव नहीं है बल्कि इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। ओके, तो देखो ये जो सेक्शन है ये वैसे केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस सेक्शन का कोई भी यूज नहीं है। अक्सर पीटी में पूछ लेते हैं सेक्शन 57 के अंदर कौन सा वर्ड यूज कर रखा है, मे और शैल। तो आपको याद रखना है सेक्शन 57 कंटेन्स वर्ड शैल, दैट मीन्स इट इज मैंडेटरी अपॉन कोर्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड द लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 57 इज ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। अब इसी तरह हम कुछ पीटी के पॉइंट जो हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं जो अक्सर पीटी में पूछे जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इनको। नंबर 1, all laws in force in the territory of India, that includes past, present and future law. Second, all public acts passed or passed by parliament, all locals and personal acts. Third, articles of war for the Indian Army, Navy or Air Force. Fourth,
course of proceeding of parliament. Fifth, accession and the sign manual of sovereign. Sixth, all seals of which English court take judicial notice. Seventh, the accession to office names, titles, functions and signature of the person. Eighth, existence, title and national flag of every state. Ninth, division of time, geographical division of the world and public festival, fast and holiday. 10th, the territories under the domain. 11th, the commencement, continuance and termination of hostilities between Government of India and any other state or person. 12th, the names of the members and officers of the court. 13th, the rule of the road on land or at sea. इसके अलावा ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इन 13 पॉइंट्स के भी अंदर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं उनको भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 2, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास बाय पार्लियामेंट। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल्स ऑफ वार। Point number 6, all seals of which English court take judicial notice. Point number 7, accession to office, names, titles, function and signatures. Point 8, existence, title and national flag of every state. Number 9, division of time, geographical division of world and public festival, fast and holiday. 10th, territories under the domain of Government of India. And 11th, commencement, continuance and termination of hostilities between Government of India and any other state or body of persons. And lastly 13, the rule of road on land or at sea. ओके, अब आप ये मत कहना कि सर आपने तो सारे मार्क करा दिया, ऐसा नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है और जो जो अक्सर पूछे जाते हैं मैंने केवल वही मार्क कराए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि केवल 1 या 2 पॉइंट ही स्किप हुए होंगे, जैसे कि 4th पॉइंट है, 5th और 6th पॉइंट है और 12th पॉइंट है। टोटल मिला के 4 ही पॉइंट जो है स्किप हुए हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पीटी में अक्सर इन फॉलोइंग फैक्ट से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको बस एक बार इनकी रीडिंग देनी है, ऐसा नहीं है कि इनको आपको रटना है, बस एक बार आप रीडिंग दे लोगे तो ये सारे फैक्ट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 57, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड नॉट फॉर मेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।